Good morning, students of class 4th. Students, I am sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had completed the comprehension exercises and frame sentences of lesson 5, Gulliver's Travel. Children, today I am going to continue with the language structure exercises of lesson 5, Gulliver's Travel. So all of you, please take out your English notebooks and your Wordsworth English Reader book. Turn the page to page number 42. Students, please take out your English notebooks and your Wordsworth English Reader book. Turn the page to page number 42, language structure exercises of lesson 5, Gulliver's Travel. Children, in the last video, I had completed exercise A, that is, write any 5 adjectives from the story along with the nouns they describe. And we had written 5 adjectives along with the nouns they describe. The first one was strange adventures. Second, distant land. Third, violent storm. Fourth, little boat. And fifth, 6 seamen. Now children, we will be learning how to frame adjectives from nouns. We all know that nouns are the naming words, whereas adjectives are the describing words. Adjective describes nouns or pronouns. All the words which tells us about the shape, color, size, quality, quantity of a noun or a pronoun, they are adjectives. So the adjective, if you look onto page number 42 in the red box above, the adjective healthy is made from the noun health. Noun health है और उससे adjective healthy बनाया. In a similar manner, the words angry and dangerous are the adjectives from the nouns anger and danger. Now, if you look at the words, ये nouns है बेटा और इनसे कैसे adjectives हम form करेंगे. पहले इसको थोड़ा आप समझो, है ना. The first word is health और health से जो adjective frame हुआ है that is healthy. Then the next word is anger और anger से adjective जो frame हुआ है that is angry. Then dangerous is the adjective formed from the noun danger. Danger से dangerous adjective form हुआ. Fine. So we can make adjectives from nouns by और हम कैसे adjectives frame करते हैं? By adding by और OUS oblique IOUS और FUN. नाउन्स के एंड में या तो Y जोड़ेंगे या OUS जोड़ेंगे या IOUS जोड़ेंगे या FUL जोड़ेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा? एडजेक्टिव्स. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज B. Exercise B, make adjectives from the following noun. This exercise, children, has to be done in the book itself. ये हम बेटा बुक में ही करेंगे. Exercise B, make adjectives from the following nouns. नाउन्स के एंड में हमने क्या पढ़ा है? या तो हम Y जोड़ेंगे या OUS जोड़ेंगे या IOUS जोड़ेंगे या FUL जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएंगे. नाउ देयर इज अ column made in the book and
can see it is written nouns and adjectives. How we are going to frame the adjectives from the nouns and adjectives. कैसे हम एंड में y या OUS, IOUS या FUL के साथ हम क्या बनाएंगे बेटा? हम एडजेक्टिव्स फ्रेम करेंगे. क्लियर? सो द फर्स्ट वर्ड इज जूस. जूस नाउन है और उससे जो हमको क्या बनाना है बेटा? एडजेक्टिव. तो जूस में हम नाउन का एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? हम JUICY, हम ई हटा के एंड में क्या लगा देंगे? Y. तो हमारा एडजेक्टिव जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? जूसी. जूस, जूसी. देन द सेकंड नाउन इज हेल्प. अब हेल्प में हम एंड में क्या लगाएंगे कि एडजेक्टिव बेटा हमारा फ्रेम हो जाए? सो वी विल एड FUL. तो क्या हो जाएगा? हेल्पफुल. HELPFUL, हेल्पफुल. क्लियर? ये क्या हो गया? एडजेक्टिव फॉर्म बाय nouns. Juice, juicy, help, helpful. Now the third word is courage. COURAGE. अब हमें courageous एडजेक्टिव फ्रेम करना है तो हम लास्ट में इसमें OUS ऐड करेंगे. COURAGEOUS. ये हमने क्या फ्रेम किया? एडजेक्टिव फ्रॉम द नाउन करेज. करेज का क्या हो गया बेटा? करेजियस. COURAGEOUS. नाउ दी फोर्थ वन. अभी जो फोर्थ वर्ड है वो है प्ले. और प्ले नाउन है, इससे हम एडजेक्टिव फॉर्म करेंगे बाय एडिंग FUL. तो क्या हो गया? प्लेफुल. प्ले PLAY. हमने इसके एंड में क्या ऐड किया? FUL. तो हमारा जो एडजेक्टिव फॉर्म हुआ वो क्या हो गया? प्लेफुल. नाउ दी फिफ्थ वन. फिफ्थ वर्ड है लेंथ. लेंथ जानते हैं ना? लेंथ, इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा? वी विल बी एडिंग Y. तो क्या हो जाएगा? LENGTHY. लेंथी. लेंथ, लेंथी. क्लियर? लेट्स रिवाइज. जूस, जूसी. हेल्प, helpful. Courage, courageous. Play, playful. Length, lengthy. Clear? I hope everyone has written. Now the next word is storm. Sixth word है storm. अब स्टॉर्म में हम क्या ऐड करेंगे कि एडजेक्टिव फॉर्म हो जाए? STORMY. स्टॉर्म. स्टॉर्म में हमने इनमें Y ऐड किया तो जो एडजेक्टिव फॉर्म हुआ दैट इज स्टॉर्म. देन दी सेवेंथ वन. सेवेंथ वर्ड है फन. अब फन में थोड़ा सा चेंज होगा. हम NY ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? फनी. FUNNY. फनी. FUNNY. फनी. Now the eighth noun is dirt. और dirt में हम क्या ऐड करेंगे कि एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा? Y.
तो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा डर्टी, डर्ट, डर्टी। देन द नाइन्थ वर्ड इज जॉय। जॉय का जो एडजेक्टिव फ्रेम होगा वो कैसे होगा? बाय एडिंग FUL एट द एंड ऑफ जॉय, तो हो जाएगा जॉयफुल। क्लियर? जॉय, जॉयफुल। देन द 10th word is adventure. Adventure में लास्ट में हम E हटाएंगे और OUS ऐड करेंगे, तो जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? एडवेंचरस। ADVENTUROUS, adventurous. So these are the adjectives which we have framed from the nouns. Let's revise. Juice, juicy. Help, helpful. Courage, courageous. Play, playful. Length, lengthy. Storm, stormy. Fun, funny. Dirt, dirty. Joy, joyful. Adventure, adventurous. नाउन के एंड में या तो हम Y ऐड करेंगे या OUS या IOUS या FUL, तो हम नाउन से क्या फॉर्म कर सकते हैं बेटा? एडजेक्टिव्स। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन दिस एक्सरसाइज। So with this we have finished our language structure exercise, and I am going to start with Grammarly exercise, which is based on degrees of comparison. Now degrees of comparison we have already done it in class 3, but अभी आपको मैं ये बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी बस आपका ग्रामर का यूनिट जो है वो आने वाला है एडजेक्टिव्स एंड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सो अभी आपको ये जानना है कि 3 डिग्रीज होती हैं जो आपने क्लास 3 में भी पढ़ा है, ठीक है? देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन चल रही है। हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर देयर? 3। हम अभी पढ़ रहे हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में, और ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव्स की होती है बेटा, ठीक है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये एडजेक्टिव की होती है। अभी हमने एडजेक्टिव फॉर्म करना सीखा। ये एडजेक्टिव्स क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है ना? और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन देयर आर 3। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री, सेकेंड इज comparative degree, and third is superlative degree. अब ये डेटा समझना जरूरी है कि इनको हम कब कैसे यूज करते हैं। बेटा जो पॉजिटिव डिग्री है, जब हम खाली किसी चीज को हमें डिस्क्राइब करना हो या किसी भी 2 चीजों को इक्वल बताना है ना, कोई भी जैसे सिमिलीज है, जब हम किसी 2 चीजों को इक्वल बताते हैं या सिंपली हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री। और बेटा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव्स होते हैं, सिंपल एडजेक्टिव्स, और उनके आगे ए, एन, वेरी, ये सब वर्ड्स लगे होते हैं। मैं आपको क्लू दे रही हूँ, और इसको मैं डिटेल में कब समझाऊंगी? जब अभी मैं ग्रामर का यूनिट आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ाऊंगी। आई थिंक इट इज यूनिट 12। एंड कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री हम यूज करते हैं व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स। जब किन्हीं भी 2 चीजों में कंपैरिजन होता है, और तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री कैसे फॉर्म होती है? पॉजिटिव डिग्री के एंड में ER, IER या उसके वर्ड के आगे 2 सिलेबल से ज्यादा जो वर्ड्स हैं उनके आगे हम मोर लगाते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म होती है। एंड द थर्ड डिग्री इज सुपरलेटिव डिग्री। दिस इज द ग्रेटेस्ट डिग्री।
और ये कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन इन मोर देन टू थिंग्स, जब दो लोगों से ज्यादा, दो थिंग्स से ज्यादा में कंपैरिजन हो, किन्हीं भी दो चीजों से ज्यादा में कंपैरिजन हो, तो अब हम सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म होती है? इनके एंड में जैसे हमने पढ़ा ER, IER या डबल सिलेबल जिसमें मोर देन 2 सिलेबल्स वाले वर्ड्स हैं उनके आगे मोर लगता है, वैसे सुपरलेटिव डिग्री में हम एंड में या तो EST लगाते हैं या IEST एंड में लगाते हैं पॉजिटिव डिग्री के, या जो मोर देन 2 सिलेबल्स वाले वर्ड हैं उनके आगे हम मोस्ट लगाते हैं। ठीक है, और आपको ये याद रखना है सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा पहले द होता है, हमेशा पहले सुपरलेटिव डिग्री का मैं क्लू दे रही हूँ, सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा आगे THE हम द यूज करते हैं, ये आप याद रखना। और जनरली कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हमेशा देन होता है, और पॉजिटिव डिग्री के आगे या तो A होगा, N होगा, वेरी होगा, पहले या बाद में एज होगा। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? जब हमें किसी चीज को डिस्क्राइब करना होता है या किन्हीं दो चीजों को इक्वल ट्रीट करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। और सुपरलेटिव डिग्री कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन इन मोर देन टू थिंग्स। क्लियर? नाउ अब फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव डिग्री टॉल है, तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? उसके एंड में हम ER लगा देंगे तो टॉलर। सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? उसके एंड में हम EST लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट। क्लियर? नाउ let's start with exercise A, which is given on page number 43. And children, this exercise again has to be done in the book itself. And this exercise is complete page number 43, बेटा इसको बुक में ही करना है। Complete the following table by writing the correct degrees of comparison of the given adjectives. Fine. So let's draw the column. पहला है बेटा पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड है आपका सुपरलेटिव डिग्री, which is the greatest degree. फाइन, ये आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल। ठीक है, अब ये दिया है
और हमको इसकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। अब बेटा ब्यूटीफुल वर्ड है मोर देन 2 syllables, ठीक है। सबसे इसका आसान तरीका क्या है जानने का, ठीक है। आप ब्यूटीफुल बोलिए, 2 तरीके मैं आपको दोनों बताऊंगी। एक तो आप अपने चिन पे नीचे हाथ रखिए और ब्यूटीफुल बोलिए और देखिए चिन कितनी बार मूव करती है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, है ना। चिन कितनी बार मूव हुई, ब्यूटीफुल, 2 times मूव हुई। दैट मीन्स कि ये 2 syllables वाला वर्ड है ना। और एक इसका दूसरा तरीका है, ब्यूटीफुल बोलिए जोर से और अपना हाथ मुंह के सामने रखिए। जितनी बार आपके हैंड पे हॉट पफ ऑफ एयर फील होगा, दैट मीन्स उस वर्ड में उतने syllables हैं। और जो भी वर्ड्स जिनमें मोर देन 2 syllables हैं, उनके आगे हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव में वर्ड के आगे मोर लगाते हैं, सुपरलेटिव में मोस्ट। नाउ ब्यूटीफुल, है ना। एंड आप ऐसे भी बोलोगे तो यू कैन फील ब्यूटीफुल, 2 puffs of air you have felt on your palm. So this is a word which has got more than 2 syllables. तो हम इसके आगे लिखेंगे more, more beautiful कंपैरेटिव डिग्री में। एंड सुपरलेटिव डिग्री में बेटा क्या लिखेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल, MOST, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर। जो 2 syllables या उससे ज्यादा syllables वाले वर्ड है, उनकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए उस डिग्री के आगे हम MORE मोर लगाते हैं, एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए उसके आगे MOST मोस्ट लगाते हैं। तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई बेटा, मोर ब्यूटीफुल, एंड सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल। नाउ दिस सेकंड वन, इसमें कंपैरेटिव डिग्री टॉलर डिग्री। नाउ वी नीड टू राइट द पॉजिटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री। अब ER लगा है इसके एंड में, दैट मीन्स इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, टॉल। ER हमने रिमूव कर दिया तो पॉजिटिव डिग्री टॉल हो गई, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, टॉल के एंड में हम EST ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, टॉलेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। क्लियर। नाउ दी थर्ड वन। अब थर्ड में पॉजिटिव डिग्री में ब्लैंक है, कंपैरेटिव डिग्री में ब्लैंक है, और सुपरलेटिव डिग्री में कोल्डेस्ट लिखा हुआ है, isn't it? तो अब हमको कोल्डेस्ट की पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। तो कोल्डेस्ट में से हम EST रिमूव कर देंगे तो कोल्ड हो गया, विच इज दी पॉजिटिव डिग्री, और इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, कोल्ड के एंड में हम ER लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कोल्डर। सो दी 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। क्लियर। नाउ दी फोर्थ वन। अब फोर्थ वाले में बेटा इजी दिया हुआ, E है S का इजी। इजी की हमको कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। तो अब इजी में एंड में Y है, सो हम Y को रिमूव करके इसकी कंपैरेटिव डिग्री IER ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इजियर। और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए Y को रिमूव करके हम IEST लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, easiest। क्लियर। easy, easier, easiest। EASIER easier, EASIEST easiest। Y को रिमूव करना है और IER और IST लगाना है। ओके, नाउ the fifth word is पॉजिटिव में ब्लैंक है, कंपैरेटिव डिग्री में मोर कैरिंग लिखा हुआ है, मोर कैरिंग लिखा है, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री में ब्लैंक। अब दैट मीन्स मोर कैरिंग लिखा है, दैट मीन्स कैरिंग, कैरिंग 2 syllable वर्ड है या मोर देन 2 syllable वर्ड है,
ring. 2 बार हमारी लोअर जॉ मूव हुआ, चिन मूव हुई. एंड इफ यू स्पीक ring, we can feel 2 puffs of hot air on our palm. That means कि ये more than 2 syllable वाला word है. तो इसका more हटा देंगे तो पॉजिटिव डिग्री कैरिंग हो जाएगी, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री में कैरिंग के आगे हम क्या लिखेंगे? मोस्ट. क्लियर? तो ये हो गई मोस्ट कैरिंग. फाइन. तो आई होप अभी इतना सबने कर लिया. रिवाइज, देन आई इरेज. ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट. इजी, ईजियर, ईजिएस्ट. कैरिंग, मोर कैरिंग, मोस्ट कैरिंग. फाइन. अब बेटा मैं ये इरेज करके 6th वाला इसमें लिखूंगी. क्लियर? Okay. Now, अभी जो 6th वर्ड है ये है फिट. सॉरी, इसमें दिया है फिटेस्ट. सुपरलेटिव डिग्री में फिटेस्ट लिखा हुआ है. अब हमको इसकी कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री लिखनी है. अब फिटेस्ट किस पॉजिटिव डिग्री से बना है? फिट. FIT, फिट. सो राइट FIT, फिट. और इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? फिटर. FITTER, फिटर. सो फिट, फिटर, फिटेस्ट. नाउ दी 7th वन. ये थोड़ा सा चेंज्ड है और इसमें बैड दिया है. अब कुछ ऐसे बेटा एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी एकदम अलग कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म होती है. दे हैव नो रूल्स. बैड का हो जाएगा वर्स. WORSE, वर्स. और इसका जो कंपैरेटिव डिग्री इज वर्स एंड सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी वर्स्ट. WORST, वर्स्ट. क्लियर? बैड, वर्स, वर्स्ट. देन द नेक्स्ट 8th वन, यहाँ पे ब्लैंक है एंड इट इज रिटन मोर इंटेलिजेंट एंड सुपरलेटिव डिग्री में ब्लैंक. दैट मीन्स कि ये मोर देन 2 syllable वर्ड है तो इसकी जो पॉजिटिव डिग्री है वो क्या हो जाएगी? इंटेलिजेंट. and the superlative degree will be most intelligent. Clear? So, intelligent, more intelligent, most intelligent. Now, the next given word is dash, dash and dearest. That means कि पॉजिटिव डिग्री बेटा क्या होगी इसकी? डियर. कंपैरेटिव डिग्री उसमें एंड में ER ऐड कर देंगे. डियर. सुपरलेटिव इज ऑलरेडी गिवन. सो डियर, डियरर, डियरेस्ट. क्लियर? देन दी 10th वन. अब 10th में यहाँ पे फनी दिया हुआ है. फाइन. अब फनी के एंड में क्या है? वाई है. तो इनकी हमको सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करनी है तो हम क्या करेंगे? हम वाई को रिमूव करके IER या IST ऐड करेंगे तो हो जाएगा फनियर. वाई को रिमूव करके IER किया तो फनी की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई? फनियर. और वाई को रिमूव करके IEST ऐड किया तो हो गया फनीस्ट. क्लियर? सो फनी, funnier, funniest. So let's revise these, then I'll erase.
The sixth one is fit, positive degree, comparative degree fitter, superlative degree fittest. The seventh word adjective is bad. इसका बेटा चेंज है, बैड का वर्स और वर्स्ट होता है. जैसे गुड का बेटर और बेस्ट होता है, वैसे बैड का वर्स और वर्स्ट होता है. देन the eighth word is intelligent. इसकी comparative degree is more intelligent and superlative degree is most intelligent. Then the ninth word is dear. The comparative degree is dearer and the superlative degree is dearest. Then the tenth adjective positive degree is funny. जो जिनमें y लगा रहता है उनमें y हटा के हम कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए IER ऐड करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए IEST ऐड करते हैं. So funny, funnier, funniest. So children, that's all for today. I'll be continuing with this exercise in my next video. Till then, do learn and revise the taught exercise. That's all for today. Thank you, students. Have a good day ahead.